about series. अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं सीरीज को पूरा नहीं दिखा रही बुक अगर है, फ्लोरीन shows highest reduction potential, that is positive value. Most positive value is for fluorine, that is plus 2.87. Because fluorine is most electronegative है, so it shows most positive electrode reduction electrode potential, that is F minus जो है वो क्या करेगा, इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव है रिडक्शन पोटेंशियल. इसका मतलब है कि फ्लोरीन जो है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनायन बनाएगा, और अगर नेगेटिव आयन है सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. एंड Li के केस में हमने देखा था Li इज द Li shows most negative electrode potential, that is minus 3.05, that is it is a strong reducing agent. and again मैंने रीजन बता दिया था, दो रीजन है एंड जो भी कंपनसेट हो जाते हैं उसकी वैल्यूज हैं. गाना मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ. सो कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. इलेक्ट्रोड whose standard reduction potential is less, लेस का मतलब है मोर नेगेटिव, लेस का मतलब क्या होगा, मोर नेगेटिव, act as anode, and other one which is high reduction potential act as cathode. This is the first important point. Okay, yes. अगर आप लिथियम टू हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं जैसा मैंने लिखवाया है और आपकी बुक में बॉटम टू टॉप है, so metals near the top of the series, that is lithium, then sodium, potassium जो भी सीरीज में है, metals near the top of the series are strongly electropositive. second point, more electropositive है, more easily electron donate करेगा, या फिर high hydration enthalpy होगी. third point, metals near the top of the series can displace more electronegative metal, और कल मैंने बताया था more positive metal displaces metals or non-metal displaces less positive metals and non-metals from their salt solution. तुम्हें जो भी लैंग्वेज इजी लग रही हो, अगर मेरी लैंग्वेज इजी लग रही है तो मेरी लैंग्वेज लिख लेना. पूर्वांशी कुछ पूछना है? non-metals displaces less positive metals and non-metals from their salt solution. यहाँ पे ये वाला एक एग्जाम्पल है, देखो बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल कल मैंने ये डिस्कस कर लिया था. ऑल्दो व्हेन इन कॉपर कंटेनर AgNO3 सॉल्यूशन इज प्लेस्ड, देन व्हाट हैपेंड, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. जस्टिफाई योर आंसर. सो क्या लिखोगे आदित्य कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कॉपर शोज मोर नेगेटिव, पॉजिटिव है दोनों, कॉपर की वैल्यू भी पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज अ lower E0 reduction value than Ag, so it displaces silver from silver nitrate solution. So copper nitrate बन जाएगा, displace किया उसने उसको और Ag फॉर्म हो गया. अगर अपन रिवर्स कर रहे हैं, Ag कंटेनर है एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दे रहे हैं, then reaction is not observed, कोई रिएक्शन नहीं होगी because Ag is less negative than copper. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मतलब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाहे मे बी आप कैसे भी ले लो इसको. मेटल above हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, दैट इज कल मैंने जब सीरीज लिखवाई थी बुक में भी थी, हाइड्रोजन का कितना था 0.0 वोल्ट. सो उससे जितने भी नेगेटिव वैल्यूज में आएंगे, जितने भी उससे नेगेटिव वैल्यूज में आएंगे, दैट इज लेस more negative E0 reduction जिनके भी होंगे और negative E0 reduction होंगे, they displaces hydrogen from acid solution, dilute acid. weak नहीं बोला है मैंने, dilute acid बोला है. Na reacts with H2SO4, it forms Na2SO4. compare with copper, no reaction. कॉपर किसी भी मेटल के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है. इट इज इम्पोर्टेंट and one this is important point है and important question भी आता है. Copper only reacts with HNO3, although why copper reacts with HNO3? Copper reacts with HNO3 but it is not displace hydrogen, it releases NO2 gas release करती है. ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट है. तो copper as copper is copper reduction electrode potential is more positive, so it is unable to replace hydrogen from acid solution. यहाँ तक हो गया है. Now, hydroxides of metals in the upper part of series are strongly basic
while hydroxides of metal in lower part are weakly basic. तुम्हें पता है NaOH सीरीज क्या आ रही थी, ली के बाबा से काका ने मांगी, तो we know that sodium NaOH, KOH, CaOH whole twice, magnesium hydroxide, they all are act as strong acid, and as we move from D block metals their hydroxide nature decreases. So यहाँ पे ये fifth point भी important, मतलब ये जस्ट तुम लोगों के रीजनिंग के लिए है, छोटे छोटे से पॉइंट्स है वो बहुत क्लियर हो जाएंगे. द एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फ्लोरीन के बाद जो भी सीरीज पे आ रहा है, कल मैंने कहा था कि बैक साइड पे अपने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लोगे. सेकेंड ऑक्सीजन आ जाता है. ओके नाउ एक दो पॉइंट्स और डिक्टेट करूंगी, वो इसमें नहीं है बेटा. मैम हाँ मैम ये नोट्स आप शेयर कर देंगे आज व्हाट्सएप पर? चैप्टर पूरा होते ही. नाउ एक दो पॉइंट्स लिखो बेटा. द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E नॉट सेल, if positive value of E naught cell shows reaction is feasible. ये और इम्पोर्टेंट है बेटा. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके जब आएगा या उसमें कि रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, देन तो रिएक्शन फीजिबल कब होगी, व्हेन E naught, दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला, E naught cell is equals to E right minus E left. If this value is positive, in case of Daniell cell it is 1.1 volt. If value is positive, then only reaction is feasible, that is electron move from Zn to Cu. If negative value आ जाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन होगा, ओनली आपको वैल्यू पुट करनी है. इसीलिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए. मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत हार्ड नहीं लगेगी आप अगर इस तरह से लर्न कर लोगे. एंड इसके क्या बता रही थी, हाँ ये लिखोगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ the positive value of E naught reduction of half cell indicate that it is a strong oxidizing agent, and negative value shows strong reducing agent. अच्छा यस पूर्वांशी सिमरन सबको बोल रही हूँ बेटा, एक बार एनसीईआरटी इंटेक्स्ट में इंडेक्स 3.1 से देखना शुरू करो. इंडेक्स 3.1 पेज नंबर मेरे ओल्ड बुक में है 68. रौनक और क्लियर होगा, कुणाल, आयुष रावल, इट्स फॉर एवरीवन. Index 3.1. Yes, first question is, how would you determine the standard electrode potential of the system? Now Purvanshi, unmute yourself बेटा. हम इसको हाइड्रोजन के साथ पहले इसको मिला रखेंगे. Very good. मुझे ये लग रहा है कि एक don't know the value of electrode potential of magnesium, so we use स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे. बिकॉज दोबारा बता रही हूँ बेटा, मैंने इसीलिए इंटेक्स्ट अभी लिया, बिकॉज E naught value of hydrogen is 0.0 volt and magnesium is more reactive than hydrogen. So magnesium electrode in magnesium ion solution, and hydrogen का मैंने बताया था. मैग्नीशियम एक्ट एज एनोड एंड दूसरा कैथोड. जो भी वोल्ट मीटर में जो भी वोल्टेज आएगा आपको सिर्फ सेटअप बताना है, क्योंकि वैल्यू आपको पता नहीं है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द E naught वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम. यहाँ तो मैग्नीशियम है बेटा, कोई सा भी हो सकता है. यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस रौनक, नेगेटिव आंसर नेगेटिव तब बेटा आपको आंसर नहीं पता. यस रौनक, टर्न ऑन योर वीडियो, क्योंकि तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, है ना. E naught रिडक्शन नेगेटिव आ जाएगी. तो पर ये तुमको वैल्यूज गिवन है तब तो तुम वैल्यू पुट कर सकते हो, माइनस प्लस करके कैलकुलेशन कर सकते हो. अगर गिवन नहीं है तो ओनली आपको सेटअप और कंस्ट्रक्शन बताना है. ओके, यस. नाउ यस,
Now next question, it's for Kunal in text 2. Can you store copper sulfate solution in a zinc pot? Justify your answer. मैंने AG के साथ बताया था, and now Kunal, sir, always justify करोगे अपने answers को, always justify करोगे, and what क्या लिखोगे? As zinc is more reactive than copper, so zinc displaces copper from copper sulfate solution, so it is not possible to store copper sulfate in zinc container. Okay, but vice versa process is अगर अपन opposite करते हैं इसका, then it is possible. I think it is clear for everyone. अगर अभी भी कोई doubt है, चिन्ना साहब, again this is for Ayush Rawal. Ayush Rawal, please. Yes, ma'am. Yes, Ayush. Third question. Consider the table of standard electrode potential. सामने next page पे है, and suggest 3 substances that can oxidize ferrous ions under suitable conditions. हम इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए इनका E0 0.77 से ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होने पे फेरस F3+ में कन्वर्ट हो जाएगा. Yes, so 0.77 से ज्यादा होना चाहिए E0, तो फिर इसके लिए Br2 suggest Cl2 हो गया मैम, F2. मेटल, कोई मेटल भी ले सकती हो बेटा. F के ऊपर जितने भी है ना, SN, PB, कॉपर, कोई से भी मेटल्स भी ले सकते हो, है ना. मेटल we can also use metals also. ठीक है? Yes, very good. Now we will start Nernst equation start कर रही हूँ, and थोड़ा सा homework दे रही हूँ बेटा आप लोगों को. For electrochemistry, that is Nernst equation, and maximum numericals are based on Nernst equation. So it's again important point. So listen carefully everyone. Copy pen लेके बैठो. With the help of Nernst equation, what is the Nernst? Nernst is a scientist, and with the help of Nernst equation, we can calculate the electrode potential of electrode or EMF of cell. That is, हम E calculate कर सकते हैं. E0, yes आदित्य, listen carefully. E0 is calculated. E0 is कल रौनक ने मुझसे पूछा था कि ऊपर नेगेटिव है तो क्या मतलब है. नेगेटिव और वो रौनक आई थिंक क्लियर हो गया होगा. It is a standard case. So it will be calculated or observed through standard condition and with the help of standard hydrogen electron. Now at different temperature and pressure conditions or different temperature condition, what is the E cell value? E0 is for individual or difference, and what is the E cell value? So according to Nernst, here is the equation. E cell is equals to E0 minus RT NF log 10 base, and it is product upon reactant. Now E0 हमें पता है standard electrode potential, R is gas constant, putting the value of gas constant, T temperature that is at 298 Kelvin, and number of electrons gained or lost in balance equation, and F is Faraday. Unit of it is a unit of charge, and it is 1 farad is equals to 96500 coulomb. Although it is 96487, but for calculation अगर a value is given नहीं है तो you can change it into 96500. Now इन सबको calculate कर लेते हैं value of R, T and F, and it gives 0.0591. So exact value is E cell is equals to E0 cell minus 0.0591 upon N log 10 product upon reactant. Okay, and product upon reactant at equilibrium it is K, and before equilibrium it is Q. So what is हाँ मैम अगर ये न्यूमेरिकल में आता तो फिर मैम लॉग तो निकालना ही नहीं आता. मैं लॉग निकालना बताऊंगी ना. मैंने कल कहा था ना कि मैं बताऊंगी निकालना. मुझे एक बात बताओ आदित्य, कितने महीने हो गए? एक बार इसको कर देती हूँ, उसके बाद एक न्यूमेरिकल लेके आपको लॉग टेबल सिखा देते हैं आज. ओके, यस. नाउ ये फॉर्मूला है बेटा, एंड फॉर्मूले में आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली वैल्यू पुट करनी है. ई सेल
E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon N log 10 base. Concentration of product, square bracket is there, it means concentration of product and upon concentration of reactant. And again इसके लिए आपको फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न होनी चाहिए. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा? ऑक्सीडाइज्ड. आप फिर भी लिख सकते हो इसके आगे अगर लिख रहे हो प्रोडक्ट मींस ऑक्सीड. यस मैम. मैम सर टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या? हाँ टेम्परेचर. यस टेम्परेचर हम स्टैंडर्ड लेंगे बेटा 298 केल्विन से मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड आउट कर लिया है. मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपकी 0.0591. आपको यही वैल्यू ये फॉर्मूला लिखोगे एंड देन वैल्यू पुट करोगे. यस ठीक है मैम. ओके. हाँ रौनक यहाँ पे आप और लिख लो concentration of oxidized form upon concentration of reactant form. Or it is K. K means at equilibrium and before it is log Q. 11th में आपने डिस्कस किया था. Yes, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया हुआ है. जस्ट इसके बाद ही मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ. एट एनोड, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ये हाफ ऑफ रिएक्शन करके एक्सप्लेनेशन है बेटा. Product upon reactant, so metal ion upon metal. At cathode, metal ion gain electron and it is again M2 upon Mn. Concentration of solid is taken as unity. This is an important note. कई बार अगर आपको although derivation नहीं आती है पर अगर मान लो किसी न्यूमेरिकल में ऐसा given है तो for metal के लिए solid के लिए concentration is always taken as unity. Why? Why we take concentration? Because concentration किसका होता है? Solution का. Metal तो dissolve ही नहीं हो रहा, metal तो solid metal है. So concentration means that is if any salt is dissolved in water, then only concentration आएगा. Otherwise हम किसी भी solid के लिए और pure substance के लिए हम concentration क्या लेते हैं? Unity लेते हैं. So here I'm putting M1 is equals to M2 is equals to 1. And we know that EMF of the cell इसने उल्टा दिया हुआ है. Although अपन हमेशा लिखते हैं E right minus E left. इसने साइन चेंज किया है. आप कंफ्यूज मत हो, आप वही फॉर्मूला लर्न करो. E naught is equals to E right minus E left. Now here putting the values. वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है बेटा. यस नाउ अब एक इस तरह से क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ आदित्य. The 0.1 m copper sulfate solution in which copper electrode is dipped at 25 degrees Celsius. Calculate the electrode potential of copper electrode. E naught given है. Now putting the value. E naught reduction calculate करना है. N is number of electron in balanced chemical equation. तो यहाँ पे +2 charge है. It gains 2 electron and it means number of electron is 2. So 0.0591 upon 2. Concentration of product. Concentration of product कितना हो जाएगा? 1. Yes or no? Because Cu product क्या है? Product तो metal है. अभी मैंने बताया metal की कोई concentration नहीं होगी. It is taken as unity. So आप 1 लोगे. It is clear for everyone. Yes. So important note ये लर्न रखोगे. ये बहुत MCQ questions में गलत नहीं होना चाहिए बच्चों. So here it is a 1 upon concentration of copper sulfate solution reactant is 0.1 m. That is 1 upon 0.1 and point हटाओगे log 10. ये बहुत सिंपल सा है आदित्य. And value of log 10 is always 1. So आपने इसको सॉल्व कर लिया. Okay. Now ये एक न्यूमेरिकल आ गया है. इसमें हम लॉग डिस्कस करेंगे. पेपर पेन और जहां पे भी आपकी लॉग टेबल है वो लेके बैठना बेटा. यस इसमें भी ऑल दो लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके रहते हैं. द ईएमएफ ऑफ द सेल. ईएमएफ गिवन है. सेल गिवन है. chromium to Cr+3, salt bridge, then Fe+2 Fe, and E naught
for every half cell is given. For chromium, it is minus 0.75 volt, and for iron, it is minus 0.45 volt. And now, according to half cell reaction, overall reaction is 2Cr plus 3Fe plus 2 gives 2Cr plus 3 plus 3Fe. ये आप तभी लिख पाओगे बेटा अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न है. Now, E naught. E naught is E right minus E left. Right में क्या लेना है आपको? यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Chromium oxidizes to Cr plus 3. So chromium act as anode and iron act as cathode. वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, एंड वैल्यू पुट करने के पास आपके पास कितना वैल्यू आ रहा है? E naught is equals to 0.30 volt. E right minus E left. E left means oxidation. Oxidation means anode. जिसका ऑक्सीडेशन होगा आप उसकी वैल्यू लोगे, और ऑक्सीडेशन किसका होगा इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? मोर रिएक्टिव. अगर आप रिएक्शन नहीं भी बना पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, और 5 मिनट तक ही शेयर करूंगी, उसके बाद में पहले आज प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लूंगी बेटा आप लोगों से. यहाँ पे देखो क्या बता रही थी. यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस रिएक्शन. कितने आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं. इन 1 Fe it is 2. 1 mole Fe neutralized by 2 electrons. It gained 2 electron. So here 3 moles of Fe is given. So total number of electron is 6. ध्यान रखना इस बात का. And 2 मत लिख देना ऊपर only charge से. So आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. It is 6. Ronak, is it clear? Yes. Ronak, Kunal, for everyone this is. Here for 1 mole Fe plus 2, and as 3 moles are there in balanced chemical equation, as number of electrons are in balanced chemical equation, so total number of electron is 6. I think यहाँ तक clear हो. हाँ हम एक बार फिर से बता दें. अच्छा, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे. ओके, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन गेन करेगा. देन उसके बाद ही आप बैलेंस कर पाओगे. क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d4 4s2, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन. क्रोमियम कन्वर्ट्स इनटू, और यहाँ पे आपको जो ये सेल रिएक्शन गिवन है बेटा, यहाँ पे भी आप देख रहे हो Cr is in Cr plus 3. Okay, so it means Cr either gain or lose 3 electrons. And in the same way Fe converts into Fe plus 2. अगर Fe plus 3 में होता तो 3 electrons होते, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. यहाँ पे Fe converts into Fe plus 2 and Cr converts into Cr plus 3. So for balance करने के लिए we write the here balanced chemical equation. यहाँ पे multiply किया हुआ है 2 and 3 से. देख रहे हो बेटा आप ऊपर? Half of reaction. Now 1 mole Fe required 2 electrons. Aditya? Yes, ma'am. So 3 moles require 6 electrons. Yes, ma'am. And तो मैम for अगर हाँ जो रिड्यूस हो रहा है बस उसके इलेक्ट्रॉन लेंगे. नहीं, ऑक्सीडाइज का ले लो ना. क्रोमियम 1 chromium gives 3 electrons. So Yes, 2 moles of chromium gives 6 electrons. अच्छा, Exactly ठीक balanced है बेटा. Okay? Yes. है, आ गया. आ गया. Okay. Now putting the value 0.30 volt minus 0.0591 upon 6 log oxidation upon reduction or product upon reactant concentration. Oxidized कौन है? Cr plus 3. Cr plus 3. Okay. एक और important बात. 11th में मुझे पता है कि इतना सा आपको याद होगा 11th का, कि जब हम इस तरह से इक्विलिब्रियम फॉर्म में, कंसंट्रेशन फॉर्म में लेते हैं, then stoichiometric coefficient goes to power. याद है? याद है? For stoichiometric coefficient goes to power. So here 2 Cr plus 3. So stoichiometry 2 goes to power, and it is Cr plus 3 whole square. Okay, and in the same way Fe plus 2 3. Now putting the value 0.30, 0.1 whole square upon 0.001.
इसमें बेटा इसमें लॉग टेबल अभी आज भी देखने की जरूरत नहीं हो रही है, कल पहले मैं फिर लॉग टेबल ही समझाऊंगी। इन पूरे को आप ओपन कर लो, ओपन करके 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 जितने पॉइंट्स है उनको हटा दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी एक बार कैलकुलेट करो, मैथ्स स्टूडेंट एंड बायो स्टूडेंट सारी। आपके पास आज पेन नहीं है। 0.3 ऊपर आ रहा है 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 और नीचे आ रहा है 1 इंटू 10 टू दी पावर -6, सो इट इज 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा आई थिंक ऊपर जाके। यस, इतनी सी सिंपल मैथ्स है बेटा। 0.1 इंटू 2 दैट इज इट इज 10 टू दी पावर मैम 2 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 2 100 आ जाएगा -2। मैम हाँ रौनक, हाँ मैम इसमें जो सॉलिड है वो उसका 1 ले लिया ना अपन ने। सॉलिड तो है ही नहीं बेटा, सॉलिड का तो 1 लेना है अपने पास, तो सिर्फ हाँ मैम Fe और क्रोमियम वो जो है। उनको तो अपने को लेना ही नहीं है ना। अपने पास फॉर्मूला क्या है रौनक, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म। तो रौनक अपने को उनका तो इन मेटल्स का तो लेना ही नहीं है, ये तो नर्स्ट अपने पास कंबाइंड इक्वेशन आ गई है। रौनक, इज इट ठीक है क्लियर? हाँ मैम, यस मैम। अब इसको सॉल्व करो बेटा, 0.1 स्क्वायर अपॉन 0.01 स्क्वायर क्यूब। क्या हुआ, कितना टाइम लग रहा है सबको सॉल्व करने में? हाँ 2 मिनट। आयुष रावल आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करने के बाद ये मल्टीप्लाई 4 log 10 10 टू दी पावर 4 का मतलब है 4 log 10, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे एंड देन आंसर आ जाएगा। log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है आदित्य। हाँ बोलो। 4 log 10 क्यों आया आदित्य? क्योंकि जो भी 10 के पावर में है ना, जो भी पावर में है वो सामने आ जाएगा। तो 4 and log 10 is 1, so 0.0591 upon 6 is multiplied by 4, ओके। एंड उसके बाद आप सॉल्व कर, इसको डिवाइड कर देना पहले, तो ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक कल इसको हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। एक इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस concentration of product upon concentration of reactant। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं। इफ आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट्स इट। एंड इन एग्जाम आदित्य, अभी तो खैर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन एग्जाम दैट इज ईदर इट इज हाफ ईयरली और प्री बोर्ड और एनुअल, लॉग वैल्यूज आर ऑलवेज गिवन। जस्ट आप अगर यहाँ तक कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे ना, जैसा रौनक ने या आयुष ने बोला 10 to the log 10 to the power 4 या जो भी वैल्यू आ रही है, then only put the value and multiply and divide, जो भी है, मतलब log की वैल्यू always given होगी। फिर भी for your practice we will discuss it tomorrow, okay?